अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, इल्म और सियासत के चैनल में आपको वेलकम कहते हैं। आज का हमारा एडिटोरियल वर्ल्ड बैंक्स एडवाइस, और ये एडिटोरियल सीरीज़ आपको हर तरह से इक्विप करती है जहाँ पे भी आपको इंग्लिश की एक्सपर्टीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। इस हवाले से आज का हमारा एडिटोरियल वर्ल्ड बैंक का जो मशवरा पाकिस्तान को दिया गया है उस हवाले से है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इस एडिटोरियल को एक दफ़ा गो थ्रू करते हैं, रीडिंग करते हैं इसका, ताकि आपको ओवरव्यू हो सके कि उसमें स्टेटमेंट क्या की गई है, कौन सा एरिया जो है उसको कवर किया गया है। इन रिसेंट ईयर्स पाकिस्तान फिस्कल सिचुएशन हैज़ deteriorated significantly due to persistently low tax revenue collection and burgeoning public expenditure. This has led to large budget deficits year after year, while a massive debt has been accumulated in the attempt to plug the gap. The situation has had a spillover effect on the external sectors, as reflected in the recurrence of balance of payments crisis every few years. It is in this context that the World Bank, in its new policy note, has reiterated its advice to the government to implement fiscal sector reforms in the next federal and provincial budgets. The objective of the suggested reforms is to cut down the consolidated fiscal deficit by boosting tax revenues, controlling expenditure, and reforming borrowing processes to limit debt accumulation. Another goal is to enhance the efficiency and productivity of government expenditure. Fiscal sector reforms play a crucial role in increasing national savings and investment. India understood the import of fiscal sector for macroeconomic management and started the reform process after its 1991 economic crisis. Consequently, it has attracted massive domestic and foreign investment. It has not had to seek another IMF bailout and is now the world's third largest economy. However, the latest policy note is different from the earlier ones, as it calls for the participation of Pakistan's provinces as equal stakeholders in this reform process for stronger intergovernment coordination and fiscal issues. Therefore, the bank wants a national fiscal policy that aligns both the federal and provincial tax effort and spending framework in line with the constitutional mandate. Implement the new Fiscal Responsibility and Debt Limitation Acts at the federal and provincial levels, including through development and implementation of the national medium-term fiscal framework through the financial year 25 budget process, the bank told the government. The suggested reforms needed to create room for growth-oriented spending are expected to be made part of a new and bigger medium-term IMF program that the finance minister will be discussing with the fund on the sideline of the World Bank IMF meeting in Washington next week. As the Prime Minister has warned multiple times of late, the next IMF program will be far tougher than any other Pakistan has embarked on the past. It will focus on fiscal and external sector reforms for recovery and growth. Given the country's extremely vulnerable external position, which has forced the government in the last 2 years to restrict imports and contract economic growth to avoid a sovereign default, the next IMF program is expected widely to be extremely tough in terms of both the speed of the required adjustments and the structural reforms goals under it. These targets will be difficult for the center to attain without provincial buy-in
एंड ऑनरशिप ऑफ रिफॉर्म्स। सो अब हम चलते हैं इसके अंडरस्टैंडिंग के हवाले से। डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी देखते हैं। डिटेरियोरेटेड, ख़राब होने की सिचुएशन, वर्सन और डिक्लाइंड। परसिस्टेंटली, मुस्तकिल तौर पर, लगातार, कंसिस्टेंटली और कंटिन्यूअली सिनोनिम्स हैं। बर्जियोनिक, बढ़ती हुई, एक्सपेंडिंग, ग्रोइंग, एक्यूमुलेटेड, जो अंबार लगा होता है, पिछला भी जमा करके सारा जो अब तक जमा हुआ उसको एक्यूमुलेटेड कहते हैं। गैदर्ड, एमेस्ड, रेफरेंस होता है किसी चीज़ का बार बार वाक़या होना, उसका रैकर होना, री अकर होना से निकला है। इन रिसेंट ईयर्स, अभी हालिया सालों में, पाकिस्तान फिस्कल सिचुएशन, जो पाकिस्तान की माली हालत है, हैज़ डिटेरियोरेटेड, यहाँ पे हैज़ प्रेजेंट परफेक्ट की जो यूज़ हुआ है। डिटेरियोरेटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। डिटेरियोरेटेड ख़राब हुआ है, सिग्निफिकेंटली, बहुत हद तक या बहुत वाज़ेह तौर पर, ड्यू टू की वजह से, परसिस्टेंटली, लगातार, लो टैक्स रेवेन्यू, कम टैक्स की आमदनी, कलेक्शन जो जमा हुआ, एंड बर्जियोनिंग और बढ़ती हुई पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के अखराजात। दिस हैज़ लेड, ये लेके गया है, टू लार्ज बजट डेफिसिट्स, के जिसमें बजट की कमी हुई है या बजट कम पड़ गया है। जब आपके आमदनी कम हो, खर्चे बढ़ जाएँ तो उसको बजट डेफिसिट कहते हैं। ईयर आफ्टर ईयर, साल साल से। वाइल अ मासिव डेट, जबकि बहुत बड़ा कर्जा, हैज़ बिन एक्यूमुलेटेड, हैज़ बिन की यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। हैज़ बिन एक्यूमुलेटेड यहाँ पे जमा हो चुका है। इन द अटेम्प्ट, इस कोशिश में, टू प्लग द गैप, ताकि इस गैप को मिलाया जाए। द सिचुएशन हैज़ हैड, यानी कि यहाँ पे ये बात की गई है कि जो आपने ज़रूरतें पूरी करनी होती है तो फिर आपको लोन लेने पड़ते हैं ताकि आप अपने खर्चे पूरे कर सकें। द सिचुएशन हैज़ हैड आ स्पिल ओवर इफेक्ट, और इस सिचुएशन का स्पिल ओवर इफेक्ट हुआ है ऑन द एक्सटर्नल सेक्टर, जो बैरूनी जितने भी सेक्टर हैं, एज़ रिफ्लेक्टेड इन द रेफरेंस, जैसा कि ये अक्कासी करता है वाक़ई होने का, ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, जब हमने पेमेंट्स करनी होती है, क्राइसिस एवरी फ्यू ईयर्स, हर चंद साल के बाद ये सिचुएशन हो जाती है। हालिया बरसों में मुसलसल कम टैक्स रेवेन्यू की वसूली और बढ़ते हुए अवामी अखराजात की वजह से पाकिस्तान की माली सूरत हाल बहुत नुमाया तौर पर ख़राब हुई है। इसकी वजह से साल ब साल बड़े बजट खसारे होते रहे हैं, जबकि इस फ़र्क को पूरा करने की कोशिश में बड़े पैमाने पर कर्ज जमा हो गया है। इस सूरत हाल का बैरूनी शोबे पर असर पड़ा है, जैसा कि अदायगियों के तवाज़ुन के बहरान के हर चंद सालों में तकरार से ज़ाहिर होता है। रीइटरेटेड, दोबारा कहना, दोबारा इरादा करना, रिपीटेड, रीस्टार्टेड। फिस्कल, मालियाती, फिनेंशियल और इकनॉमिक इसके सिनोनिम्स हैं। रिफॉर्म्स, दोबारा से इस्लाहात करना, चेंजेस, इम्प्रूवमेंट्स। एक्सपेंडिचर, अखराजात को कहते हैं। स्पेंडिंग, आउटले। एक्यूमुलेशन, जो जमा हो शुदा होता है। गैदरिंग, कलेक्शन। इट इज़ इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ये इस सूरत हाल में है, दैट द वर्ल्ड बैंक के जो आलमी बैंक है, इन इट्स न्यू पॉलिसी, अपनी नई पॉलिसी में जो नोट उसने बयान किया है, हैज़ रीइटरेटेड, उसने दोबारा तहैया किया है, इट्स एडवाइस, अपनी सलाह मशवरा, टू द गवर्नमेंट को, टू इम्प्लीमेंट फिस्कल सेक्टर रिफॉर्म्स, ताकि वो जो माली तौर पर सेक्टर्स जो हैं उनके अंदर इस्लाहात करें। इन द नेक्स्ट फेडरल एंड प्रोविंशियल बजट, आने वाले जो वफाकी और सूबाई बजट में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सजेस्टेड रिफॉर्म्स, और इन जो इस्लाहात हैं उनका मकसद, इज़ टू कट डाउन द कंसोलिडेटेड फिस्कल डेफिसिट, के जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कम करना, उसको ख़त्म करना। बाय बूस्टिंग टैक्स रेवेन्यू, और टैक्स बढ़ाना ताकि आमदनी बढ़ सके। कंट्रोलिंग एक्सपेंडिचर, और ख़र्चों को कम करना। एंड रिफॉर्मिंग, और रिफॉर्म करना, इस्लाहात करना। बारोइंग प्रोसेस, जो उधार लेने का तरीक़ाकार है। टू लिमिट डेट एक्यूमुलेशन, ताकि कर्जे कम हो सकें। इसी तनाज़र में आलमी बैंक ने अपने नए पॉलिसी नोट में हुकूमत को आइंदा वफाकी और सूबाई बजट में मालियाती शोबे में इस्लाहात के नफाज के लिए अपने मशवरे का अयादा किया है। तजवीज़ करदा इस्लाहात का मकसद टैक्स महसूलात में इजाफ़ा, अखराजात को कंट्रोल करने और कर्ज़ों के जमा होने को महदूद करने के लिए कर्ज़ लेने के अमल में इस्लाहात के ज़रिए मजमूई मालियाती खसारे को कम करना है। इन्हेंस, किसी चीज़ को बढ़ाना। एफिशिएंसी,
कारकर्दगी बढ़ाना यानी कि कम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट लेना, एक्सपेंडिचर अखराजात क्रूशल जो है नहायत अहम होता है। मैक्रो इकोनॉमिक, एक होते हैं माइक्रो कम लेवल पर और मैक्रो होते हैं कंट्री लेवल पर। मैक्रो इकोनॉमिक ओवरऑल यानी कि नेशनल लेवल पे जो होता है। एंड अदर गोल, एक और मकसद या एक और मंजिल, इज़ टू इन्हेंस, ताकि बढ़ाया जा सके, द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, यानी कि जो आपकी कारकर्दगी है और आपकी प्रोडक्शन है, पैदाइश है ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के जो अखराजात को। फिस्कल सेक्टर रिफॉर्म्स, जो मालियाती सेक्टर्स हैं उनके इस्लाहात, प्ले अ क्रूशल रोल, वो इंतहाई अहम रोल अदा करती है इन इंक्रीजिंग नेशनल सेविंग, जिससे जो कौमी बचत है वो बढ़ती है, एंड इन्वेस्टमेंट, और इससे सरमायाकारी होती है। इंडिया अंडरस्टूड द इम्पोर्ट ऑफ द फिस्कल सेक्टर, इसी तरीके से इंडिया ने जो फिस्कल सेक्टर है उसकी जो इम्पोर्ट्स हैं उनको समझा फॉर मैक्रो इकनॉमिक मैनेजमेंट, मुल्की लेवल पे जो मैनेजमेंट थी, इंतज़ामिया थी, एंड स्टार्टेड द रिफॉर्म्स, और इस्लाहात को शुरू किया, प्रोसेस, इस तरीक़ेकार को, आफ्टर इट्स 1991 इकनॉमिक क्राइसिस, जब उसको 1991 के जो इक़्तिसादी क्राइसिस का शिकार हुआ था। एक और मकसद हुकूमती अखराजात की कारकर्दगी और पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना है। मालियाती शोबे की इस्लाहत कौमी बचत और सरमायाकारी बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती हैं। हिंदुस्तान ने मैक्रो इकनॉमिक्स मैनेजमेंट के लिए मालियाती शोबे की दरामद को समझा और 1991 के माशी बहरान के बाद इस्लाहत का अमल शुरू किया। कॉन्सिक्वेंटली, आखिरकार, नतीजतन अट्रैक्टेड, उसको अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट किया, खींचा, स्टेक होल्डर जो शराकतदार हैं, कोऑर्डिनेशन, ताउन, मैंडेट, अख्तियार। कॉन्सिक्वेंटली, आखिरकार, नतीजतन, इट हैज़ अट्रैक्टिव मासिव डोमेस्टिक, इसने अपनी तरफ खींचा जो मासिव डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो घरेलू तौर पर यानी कि मुल्क के अंदर, और जो बैरूनी सरमायाकारी है। इट हैज़ नॉट हैड टू सीक, इसको दोबारा लेना नहीं पड़ा, अनदर IMF बेल आउट, कि IMF का बेल आउट पैकेज, एंड इज़ नाउ द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी, और अब दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी है। हाउएवर, ताहम, द लेटेस्ट पॉलिसी नोट, अभी का जो हालिया पॉलिसी नोट है, इज़ डिफरेंट फ्राम द अर्लियर वन, पहले के जो नोट्स हैं उनसे डिफरेंट है। एज इट कॉल्स फॉर द पार्टिसिपेशन, जैसा कि ये कहता है कि शमूलियत की जाए ऑफ पाकिस्तान प्रोविंसेस, पाकिस्तान के जो सूबे हैं वो भी एज इक्वल स्टेक होल्डर, वो भी बराबर के शराकतदार हूँ इन दिस रिफॉर्म प्रोसेस, इस जो इस्लाहात का अमल है। फॉर स्ट्रॉन्गर इंटर गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन, ताकि जो गवर्नमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन है उसमें मजबूती है, ऑन फिस्कल इशू, जो माली मामलात हैं। देयरफॉर, इसलिए द बैंक वांट्स, बैंक चाहता है, नेशनल फिस्कल पॉलिसी, कि एक मुल्की लेवल पर माली पॉलिसी बनाया जाए, मालियाती पॉलिसी बनाई जाए, दैट अलाइंस, जो कि उनको हमवार करे, बराबर करे, बोथ द फेडरल एंड प्रोविंशियल टैक्स एफर्ट, जो सूबाई और वफाकी जो टैक्स की कोशिशें हैं, एंड स्पेंडिंग फ्रेमवर्क, और जो खर्चा करने का तरीक़ाकार है, इन लाइन विद दी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, जैसा कि आइन में दिया गया अख्तियार है। नतीजतन, इसने बड़े पैमाने पर मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब किया है। उसे एक और IMF बेल आउट पैकेज की ज़रूरत नहीं है, और अब ये दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत है। ताहम, ताज़ा तरीन पॉलिसी नोट पेरिस वाले नोटों से मुख्तलिफ है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान के सूबों की शराकत का मुतालबा किया गया है। बहैसियत स्टेक होल्डर्स, मालियाती उमूर पर मजबूत बैनुल हुकूमती हम आहंगी के लिए इस सलाहती अमल में, लिहाजा बैंक एक कौमी मालियाती पॉलिसी चाहता है जो वफाकी और सूबाई टैक्स की कोशिशों और अखराजात के फ्रेमवर्क को आइनी मैंडेट के मुताबिक बनाए। इम्प्लीमेंट, लागू करना, फिस्कल माली रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदारी, डेट, कर्जा, और लिमिटेशन, एक महदूदियत। इम्प्लीमेंट द न्यू फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब नई जो मालियाती ज़िम्मेदारी है इसको अमल दरामद किया जाए, एंड डेट लिमिटेशन, और कर्ज़ों को कम करना, एक्ट्स, अमाल के ज़रिए, एंड फेडरल एंड प्रोविंशियल लेवल, एट फेडरल एंड प्रोविंशियल लेवल, वफाक और सूबों के लेवल पर, इंक्लूडिंग थ्रू डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन, इसमें शामिल है जो तरक्याती हैं और अमल दरामद करने वाले ऑफ नेशनल कौमी मीडियम टर्म फिस्कल फ्रेमवर्क, जो मुतवस्सित जो टाइम पीरियड जो है वो माली फ्रेमवर्क के लिए थ्रू फाइनेंशियल ईयर 25 बजट, जो 2025 का बजट होगा, और इस अमल के ज़रिए द बैंक टोल्ड द गवर्नमेंट, बैंक ने गवर्नमेंट से मुतालबा किया। बैंक ने हुकूमत को बताया कि वफाकी और सूबाई सतहों पर
नए मालियाती ज़िम्मेदारी और कर्ज के बजट के अमल के ज़रिए 2000 फाइनेंशियल ईयर 2025 की हदबंदी के एक्ट को नाफिज करें, बशमूल कौमी दरमियानी मुद्दत के मालियाती फ्रेमवर्क की तरक्की और नफाज के ज़रिए बैंक ने हुकूमत को ये बताया है। रिफॉर्म्स इस्लाहात ग्रोथ ओरिएंटेड, जिसमें नमो हो, अफजाइश हो, बढ़ोतरी हो और स्पेंडिंग अखराजात इम्बार्क शुरू करना फिस्कल माली तौर पर। द सजेस्टेड रिफॉर्म्स, ये जो एक फ़र्ज़ किए गए है, जो एक एडवाइस की गई है इस्लाहात के हवाले से, नीडेड टू क्रिएट, इसकी ज़रूरत है कि पैदा किया जाए रूम, जगह, स्पेस फॉर ग्रोथ ओरिएंटेड स्पेंडिंग, ऐसे खर्चे जहाँ से दोबारा आपको फ़ायदा भी हो, ग्रोथ हो, और एक्सपेक्टेड टू बी मेड, ये मुतवक्की है कि बनाए जाएंगे पार्ट ऑफ द न्यू एंड बिगर मीडियम टर्म IMF प्रोग्राम, ये हिस्सा बनाया जाएगा जो IMF का दरमियानी अरसे का जो एक बड़ा IMF का प्रोग्राम है, उस हवाले से। दैट द फाइनेंस मिनिस्टर विल बी डिस्कसिंग, जो वज़ीर ख़जाना है वो बहस करेगा विद द फंड IMF के साथ ऑन द साइड लाइन ऑफ द वर्ल्ड बैंक IMF मीटिंग, जो IMF के साथ वर्ल्ड बैंक की जो मीटिंग होगी उसके साइड लाइन पे इन वाशिंगटन नेक्स्ट वीक, आने वाले हफ्ते में। एज़ द प्राइम मिनिस्टर हैज़ वांट, जैसा कि वज़ीर आज़म ने तंबीह की है मल्टीपल टाइम्स, कई बार ऑफ लेट, जो पीछे अभी बात हुई, द नेक्स्ट IMF प्रोग्राम विल बी फार टफर, कि आने वाला IMF का प्रोग्राम जो है वो मुश्किल होगा दैन एनी अदर पाकिस्तान हैज़ इम्पाक्ट, जो पाकिस्तान ने पहले शुरू की है ऑन द पास्ट, माजी में। इट विल फोकस ऑन फिस्कल एंड एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स, ये फोकस करेगा, ये तवज्जो मरकूज़ करेगा माली तौर पर बैरूनी जो सेक्टर्स हैं उनकी इस्लाहात के हवाले से, फॉर रिकवरी एंड ग्रोथ, ताकि वो बेहतर भी हों और उनकी बढ़ोतरी भी हो। तजवीज़ करदा इस्लाहात जो कि तरक्की पर मबनी अखराजात के लिए गुंजाइश पैदा करने की ज़रूरत है। तवक्को है कि एक नए और बड़े वस्त मुद्दती IMF प्रोग्राम का हिस्सा बनाए जाएंगे, जिस पर वज़ीर ख़जाना वर्ल्ड बैंक IMF इजलासों के मौका पर फ़ंड के साथ तबादला ख्याल करेंगे अगले हफ्ते वाशिंगटन में जो होगा। जैसे कि वज़ीर आज़म देर से मुतअद्दिद बार ख़बरदार कर चुके हैं, अगला IMF प्रोग्राम इससे कहीं ज़्यादा सख्त होगा जितना कि पाकिस्तान ने माजी में शुरू किया है। ये बहाली और तरक्की के लिए मालियाती और बैरूनी शोबों की इस्लाहात पर तवज्जो मरकूज़ करेगा। वल्नरेबल, जो एक सस्पेक्टिकल हो, या जो आप ये कह सकते हैं डेलिकेट हो, जो बड़ा नाजुक मोड़ पे हो, सॉवरियन हुकूमती या मुतलकुल इनानियत है, आज़ादी है, डिफ़ॉल्ट है, जो बेपास हो जाना, डिफ़ॉल्ट होना यानी कि फ़ेल हो जाना, नाकाम हो जाना, अटेन हासिल करना, प्रोविंशियल सूबाई। गिवन द कंट्रीज़ एक्सट्रीमली वल्नरेबल एक्सटर्नल पोजीशन, ये जो देखते हुए जो मुल्क की एक इंतहाई नाजुक जो एक्सटर्नल पोजीशन है, एक सूरत हाल है, विच हैज़ फोर्स द गवर्नमेंट, जिसने मजबूर कर दिया है गवर्नमेंट को इन द लास्ट 2 ईयर, पिछले 2 सालों में, टू रेस्ट्रिक्ट इम्पोर्ट्स, जिससे जो दरामदात हैं उनको कम किया गया, एंड कॉन्ट्रैक्ट इकनॉमिक ग्रोथ, और जो इक्तसादी तरक्की है उसको कम किया गया है, टू एवर्ट सोवरेन डिफ़ॉल्ट, ताकि डिफ़ॉल्ट से बचा जा सके। द नेक्स्ट IMF प्रोग्राम इज़ एक्सपेक्टेड, आने वाला IMF का प्रोग्राम मुतवक्की है, वाइडली टू बी एक्सट्रीमली टफ, बहुत वसी पैमाने पर मुश्किल, इन टर्म्स ऑफ बोथ, दोनों तरह से, द स्पीड ऑफ द रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट, जिसमें रफ्तार होगी एडजस्टमेंट के हवाले से, एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स गोल्स अंडर इट, और जो एक साख्त की बुनियाद पर इस्लाहात की जाएंगी, उनका जो मकसद है उस हवाले से। दीज टारगेट्स विल बी डिफ़िकल्ट, ये जो हदफ हैं मुश्किल होंगे फॉर द सेंटर, मरकज़ के लिए, टू अटेन, हासिल कर सकें, विद आउट प्रोविंशियल बाय इन, बगैर सूबों के शामिल हुए, एंड ऑनरशिप ऑफ रिफॉर्म्स, जिससे वो जो इस्लाहात हैं उसकी ऑनरशिप लें, उसको अपनाएं या उसकी ज़िम्मेदारी लें। मुल्क की इंतहाई कमज़ोर बैरूनी पोजीशन के पेश नज़र, जिसने हुकूमत को गुज़श्ता 2 सालों में दरामदात को महदूद करने और ख़ुद मुख्तार डिफ़ॉल्ट को रोकने के लिए इक़्तिसादी तरक्की को रोकने पर मजबूर किया है। तवक्को है कि अगला IMF प्रोग्राम मतलूबा रफ्तार दोनों के लिहाज से इंतहाई सख्त होगा। एडजस्टमेंट और इसके तहत साख्ती इस्लाहात के अहदाफ सूबाई ख़रीदारी और इस्लाहात की मुल्कियत के लिए बगैर हासिल करना मरकज़ के लिए मुश्किल होगा।
सो ये था एडिटोरियल। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।